district Mansa in Punjab. Uh, Still now I'm working with our NMM team in the Ministry of Education as a national mentor for Vedic Sciences 21st Century Skills. What I have blessings till now, with God grace, all your wishes. I got National Teacher Award in 2022 by Honorable President of India. I got Malti Gyanpith Puruskar in 2017 by Honorable President of India, and I'm very lucky that I got this platform. I'm being able to stand on the highest platform India on President Auditorium. Then in 2018, I got the Punjab State Teachers Award for my services. Still, I'm also blessed. From 2011, I'm working as an author of Punjab School Education Board for math books from first to 10th class books. I'm the author of the team, and also I'm working as a Punjab State Mentor of Mathematics. From last year, I'm working as a teacher trainer of Vedic math. Also now, Punjab will be the first state to introduce Vedic math class-wise in the form of teacher training. Also, full-fledged teacher training is there, and also as a part of curriculum. This is the my capacity building and efforts. I got the chance to attend a training workshop at NIA Singapore in 2022, and also I got the chance to train two times at ISB Mohali International Institute of Mohali for Leadership and the leading institute of ISB. Now my efforts are there. I have started one YouTube channeling Abhyas by Arun sir, in which you have more than 700 videos from 6th to 12th class mathematics to simplify for teachers and students, and more than 14,000 students and teachers are taking benefit from this channel. With the similar effort, and I have started an app also, Abhyas. You can check on the platform on your Play Store. That is also working. Now, the basic fact that was my intro. Now, being as a math, what I have experienced from last 10 or 12 years, क्योंकि जो मैथ एक फोबिया माना गया है, मैथ को एक सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट माना गया है कि अगर मैं कहूँ इंडिया में अगर मैं 10 बच्चों से पूछूं तो 10 में 8 या 9 बच्चे ये कहेंगे सर आई डोंट वांट टू डू मैथ। हमने मैथ बहुत मुश्किल से किया है, सिर्फ 10 to 15% students or a persons or households will tell that they have interest in mathematics, and all of you will be really aware of this factor. So this is the one data which I have considered, that 75.2% of all children in grade 5 in India, check, in India, can't do division 3 digit by 1 digit. अगर मैं कहूँ उन्हें कि आपको 3 by की एक डिवीजन करनी है तो 75% स्टूडेंट्स कांट डू। चेक द फैक्ट, चेक दिस फैक्टर, क्या ये चीज है? मतलब हमारे बच्चे 75% एक सिंपल डिवीजन नहीं कर पा रहे, फिफ्थ क्लास के बच्चे। एंड वी आर थिंकिंग, वी आर प्लानिंग, वी हैव ऑलरेडी गो टू स्पेस, बट आवर जनरेशन, व्हाट इज आवर नेक्स्ट जनरेशन, what they are doing? Next data, 73.7% of all children in grade 3 can't subtract, or just they are not able to do subtraction. Almost 3 by 4th of third class Indian students, 2 digit with borrowing. Simple they can do, but if there is borrowing, so this is a data, this is a fact by Pratham Institute in 2012. Check this complete phase. So what we are talking about today, it is our progress. What we India have given to the world, I think we Indians have given mathematics to the world. From Aryabhatta till now, we Indians are always being a proud part of in mathematics and engineering. Yes, our brain. well, अगर हम देखें फॉरेन में तो 80% इंडियंस ने कंप्लीट एमएनसी में, यूनिवर्सिटीज में, हेड ऑफ डिपार्टमेंट में अपने आप को एस्टेब्लिश किया है। पर क्या ये हमारा नेक्स्ट जनरेशन का डाटा है? क्या 3/4 स्टूडेंट्स, 3/4 ऑफ आवर जनरेशन, उनको जो मैथ नहीं आ रहा, तो क्या इन फ्यूचर में 20, 30, 50 सालों बाद क्या हम कहेंगे कि फॉरेन में हमारा बच्चा बैठा है? कि जो इंडियंस एक शार्प माइंड के लिए माने जाते थे, विद दिस फैक्टर, is it possible? Can we believe that we can continue our that history process? I don't think so. This is not of India.
Check now, almost 50% British adult have the math skill of 11 year. Yes, adult. जो एक इंडियंस की एक 11 साल के बच्चे की मैथमेटिक्स स्किल है, वो ब्रिटिश अडल्ट की सिर्फ 50% लोगों की है. लेस देन 50% सक्सेस रेट इन अफ्रीका सीनियर सेकेंडरी एग्जाम. यस, 10th और 12th के जो फाइनली अफ्रीका के मैथ के एग्जाम है, उसमें जो रेशियो है दैट इज लेस देन 50%. क्यों ये ऐसा क्यों हो रहा है? वाई ऑल आर सफरिंग, ऑल आर फियरिंग है फ्रॉम मैथ फोबिया. जब मैथ आ जाता है, क्यों सबको डर लगने लग जाता है कि यार ये क्या आ गया? जबकि अगर मैं कहूं, व्हेन यू आर waking up with the opening of your eye and up to night, up to closing your eye, incomplete that your schedule, you are using math everywhere surrounding your life, direct or indirect way. और जो चीज हमारे साथ चल रही है, उसमें हमारा ये चीज चल रहा है. रीजन, व्हाट इज द रीजन? इट्स नॉट ओनली ऑफ इंडियाज प्रॉब्लम, इट्स प्रॉब्लम ऑफ ऑल वर्ल्ड्स. रीजन इज math is considered as a subject. यस, दिस इज अवर प्रॉब्लम. क्योंकि जो सर्वे मैंने किया और प्रथम ने किया, जो आपके सामने पड़ा है, मैथ को एज ए सब्जेक्ट माना गया है, मैथ को एज ए नेचर नहीं माना गया. मैथ हमारी नेचर है. अगर हम काउंटिंग करते हैं तो हम फिंगर्स पे काउंट करते हैं. अगर हम मार्केट जा रहे हैं, कुछ भी, वी आर परचेजिंग एनीथिंग फॉर आवर हाउस होल्ड एक्टिविटीज, वी आर यूजिंग मैथ. वी आर डूइंग शॉपिंग, वी आर डूइंग, आजकल ऑनलाइन का सिस्टम चल रहा है, कैशबैक चल रहा है. इफ वी आर नॉट एबल टू डू, तो इट इज जस्टिफाइड. यू अग्री विद मी? आई डोंट थिंक सो वी आर अग्री विद दैट. तो दिस इज अ प्रॉब्लम. उसके लिए क्या हुआ? नाउ दिस इज अवर मेन कंसेप्ट. लेट अस अंडरस्टैंड द वैदिक मैथ बुक, रिवाइवल ऑफ एंशियंट इंडियन नॉलेज सिस्टम फॉर अवर विकसित भारत. यस. तो वैदिक मैथ में क्या था, वैदिक साइंसेस में क्या था? हमारे एंशियंट जो अनसेस्टर्स हैं वैदिक साइंसेस के साथ रिलेटेड, उन्होंने मैथ को इतना इजी बनाया है, जिसमें, क्योंकि अगर आप आज के टाइम में बच्चों को पूछो उनको मैथ में क्यों प्रॉब्लम आ रही है, तो दे विल से ये मुझे समझ नहीं आया. क्यों नहीं आया? इसका कॉन्सेप्ट बड़ा टेक्निकल है, ये बड़ा मुझे मुश्किल लगता है. क्यों? क्योंकि पता नहीं टीचर ने क्या करवा दिया. रीजन, अवर जो कन्वेंशनल मेथड्स चल रहे हैं, मॉडर्न मेथड्स चल रहे हैं, वो टेक्निकली चल रहे हैं. दैट इज आर बेस्ड ऑन टेक्निकलिटी. बट अवर वैदिक मैथ, दैट इज बियॉन्ड द टेक्निकलिटी. उसमें एक सिंपल वर्क किया गया है, उसमें सिंपल कॉन्सेप्ट्स बताए गए हैं कि आपने उसको कैसे सॉल्व करना है. स्पेशली अगर मैं एक नॉर्मल बात करूं, तो अगर एक 100% एक डाटे की बात करें, तो जो एक जर्नल मैथ है, अगर एक सिंपल मैं बात करूं जर्नल मैथ, तो आउट ऑफ 100%, 95% लोगों को जर्नल मैथ का पता होना चाहिए, विच वी कैन से एवरीडे मैथ. यू शुड नो द एवरीडे मैथ. व्हेन यू आर गोइंग टू मार्केट, यू शुड know to calculate the price of a vegetable before the vendor. एक जर्नल क्वेश्चन है. इफ आई आस्क फ्रॉम यू, आप मार्केट में एक सब्जी लेने गए हो, सपोज यू आर टेकिंग वन सब्जी फॉर ₹12 पर केजी, और आपने 450 ग्राम ली है, तो मुझे लगता है आपको सोचना पड़ेगा. ये आप उसको बोलोगे, देख भाई, तू देख ले कितना लेना है, उतना ले ले. बिकॉज वी आर नॉट एबल टू कैलकुलेट, वी आर नॉट अप्रोचिंग टू दैट परफेक्शन, दैट पर्सपेक्टिव, कि हम ये जो एवरीडे मैथ है इसको कैलकुलेट कर लें. हम सब शॉपिंग का इंतजार करते हैं, विंटर ब्रेक, समर ब्रेक का हम वेट करते हैं कि कब हमारे पास विंटर ब्रेक आएगी, कि चलो शॉपिंग करने चलेंगे. वी डू ना. तो एक सिंपल क्वेश्चन है, इफ ₹2 for 50 price of a shirt is there and there is 15% off, can you calculate price in 2 minutes, 1 second, 5 seconds? No, we need calculator. Either we need calculator, or many of them are not able to calculate. This is our problem. What we will do, how we'll do, that is our Vedic math. Because in Vedic math, we don't have any formula, we don't have any concept, but we have logic. Yes, we have system to solve. How? Let us start our today's session. Revival of Ancient Indian Knowledge, IKS, for our Viksit Bharat, जो हमारा एक सपना संजोया गया है, उसके लिए आज जो हमारा सेशन है, we are going to start. Yes, before that, let me check your knowledge. Can you name any 7 Indian mathematician? Please, you can write in comment box, no problem is there. Can you name?
यस, जस्ट 7 इंडियन मैथमेटिशियन, 7 इंडियन। तो मुझे लगता है हमें सोचना पड़ेगा, यस सोचना पड़ेगा। क्यों सोचना पड़ेगा? क्यों ये प्रॉब्लम आ रही है? जब हम इंडियन की बात कर रहे हैं, क्यों कहीं ना कहीं हम इस सोच पे अटक जाते हैं कि यार ये क्या हो रहा है? रीजन, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? मुझे लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पे एक फ्लॉ चल रहा है, एक गैप चल रहा है। गॉट इट? तो उसको कैसे खत्म करें? कैसे हम हमारे इंडिया को दोबारा उसी स्टेज पे लेके आए जहां पे हम ये कहते थे कि वो सोने की चिड़िया है हमारा भारत। देखिए अब सोचो, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम चल रही है। गॉट इट? कहीं ना कहीं एक गैप है टीचर्स और स्टूडेंट्स का आपस में। कहीं ना कहीं टीचर्स बच्चों को वो चीज नहीं दे पा रहे जो हमारे बच्चों को मिलनी चाहिए, जो पुराने बच्चों को, पुराने एंशियंट टाइम में, वैदिक टाइम में हम बच्चों को कहते हैं वो जो गुरुकुल वाला कॉन्सेप्ट था उससे मिल रही थी। तो डू यू एग्री विद मी? आज का जो सिस्टम चल रहा है, एजुकेशन सिस्टम, जो भी सिनेरियो पेडागोजीज चल रही हैं, पेडागोजीज चल रही हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारे जो इंडियन बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, क्यों वो मैथ से दूर भाग रहे हैं? तो कहीं ना कहीं तो गैप है ना, कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है ना। चाहे वो टीचिंग मेथोडोलॉजी में है, चाहे वो पेडागोजी में है, चाहे वो कोई एक नॉलेज इम्पार्ट करने में है, और समथिंग इज देयर। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग 2002 में अभी वी आर वर्किंग ऑन IKS, इंडियन नॉलेज सिस्टम। यस, दैट्स नॉट इन मैथ, वो चाहे साइंस सब्जेक्ट है चाहे SST में है, क्योंकि अभी शायद ये सोचा गया कि जो हमारे इंडियन को दोबारा विकसित करने के लिए, दोबारा उस नॉलेज को गेन करने के लिए, दोबारा उसको रिवाइव करने के लिए, वी नीड ऑथेंटिकेट वर्क टू, और वी हैव टू वर्क लार्जली ऑन ग्लोबल लेवल। सो देयर इज IKS, इंडियन नॉलेज सिस्टम। अब अगर मैं 7 इंडियन मैथमेटिशियन को कहूं तो जनरली हम क्या बोलते हैं? आर्यभट्ट, अगर सुना होगा किसी ने, ब्रह्मगुप्ता, रामानुजन, या एक शकुंतला देवी, बस। तो हम सोचने लग जाते हैं, बट देर इज अ भास्कर, देर इज वरामीरा, देर इज महावीरा, देर इज विरहंका, नाम सुना है? देर इज माधव, शायद आपने नाम भी नहीं सुना। देखिए यही चीज प्रॉब्लम है। रीजन, क्योंकि हमारा जो कल्चर था कहीं ना कहीं, ड्यू टू अवर पास्ट हिस्ट्री, वो सबको पता है हमारी हिस्ट्री क्या थी, हमारा कल्चर लिटरेचर जो सारा डिस्ट्रॉय किया गया था, लेकिन अब दोबारा रिवाइव हो रहा है। यू नो वन थिंग लेट मी स्पेशल। अगर आप 10th तक मैथ की बात करें तो सिंपल सा एक मैं कॉन्सेप्ट लेके चल रहा हूँ। 10th तक मैथ में हमारे पास कितना सिस्टम है? नंबर सिस्टम, डेसिमल, वी हैव फ्रैक्शंस, वी हैव ज्योमेट्री, वी हैव थ्योरम्स, ट्रिग्नोमेट्री, बहुत कुछ है, पॉलिनोमियल्स वगैरह। तो कितने टॉपिक्स, कौन कौन से टॉपिक इंडियन मैथमेटिशियंस ने दिए हैं? डू यू नो? वी डोंट नो। क्यों? कहीं भी मेंशन नहीं है। या तो हम क्या कर रहे हैं, रील्स को देख रहे हैं जो चल रही हैं, क्यों? हमारा एक बिलीव बन चुका है सबका इस टेक्नोलॉजी में, जो रील्स आती हैं वो सब सही होती हैं, बट नहीं। जो असली नॉलेज है वो कहाँ पे है? वो आप अगर रिसर्च करोगे, यू विल कम टू नो द फैक्ट। तो लेट अस स्टार्ट विद मी वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दिस जीरो। We know zero is one of the greatest contribution given by Indians to this world. All of you are agree with me. But now one my simple question is there. Who invented zero? Yes. My simple question with you is there. Who invented zero? So 95%, not 95, more than 97% will say Aryabhatta. Aryabhatta. Am I right? But wrong. आर्यभट्ट आप क्यों बोल रहे हो? क्योंकि जो रील्स चल रही है वहां पे सब पे लिखा हुआ जीरो इज गिवन बाय आर्यभट्ट। रॉन्ग। जीरो इज गिवन बाय ब्रह्मगुप्ता। यस, ब्रह्मगुप्ता, यू कैन चेक ऑनलाइन नाउ ऑन द गूगल।
ऑथेंटिकेशन आपको मिल जाएगा। रील्स पे विश्वास करते हैं, हम गूगल पे नहीं। हम कभी भी इतनी एफर्ट नहीं करते कि लेट अस स्टार्ट यार, नहीं, हम कभी भी नहीं करेंगे। जीरो इज इन्वेंटेड बाय ब्रह्मगुप्ता बट पॉपुलराइज्ड used by Aryabhatta in decimal system. Yes, invented, discovered, initiated by Brahmagupta, but used and widely spread by Aryabhatta in decimal system or in other system. So in India, what is actually a Vedic math? If I will say कि वैदिक मैथ असल में क्या है, तो जनरली हम ये बोलते हैं कि वैदिक मैथ जो वेदा से लिया गया है, हम जनरली ये बात करते हैं जो वेदा से लिया गया, पर नहीं। अगर मैं इसकी एक बात करूं, वैदिक मैथ इज बेसिकली नॉट फ्रॉम वेदास, इट इज द मैथ ड्रिवन बाय इंडियन मैथमेटिशियन विद टाइम टू टाइम। उसके लिए हम आगे भी डिस्कस करें। दीज आर सम इंपॉर्टेंट थिंग्स आई हैव टेकन बाय इंडियन मैथमेटिशियन विच वी आर वाइडली यूजिंग। अब जीरो, डेसिमल सिस्टम, जो फेमस स्क्वायर फॉर्मूला है ए प्लस बी होल स्क्वायर, कभी सोचा वो इंडियन मैथमेटिशियंस ने दिया है आर्यभट्टा ने? कभी नहीं सोचा। हमें पता है कि यार ए प्लस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बट वी डोंट नो दैट इज आल्सो गिवन बाय आर्यभट्टा। एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है 10th क्लास में, मैं याद दिलवाता हूँ, डिस्क्रिमिनेंट वाला, बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला, दैट इज गिवन बाय श्रीधर आचार्य। वी डोंट नो। स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का कॉन्सेप्ट किसने दिया? ब्रह्मगुप्ता ने। 7th 8th क्लास में हम स्क्वायर रूट और क्यूब रूट की बात करते हैं, वी आर एबल टू फाइंड इवन यू नो इन कन्वेंशनल मैथ। अगर मैं स्क्वायर रूट की बात करूं, तो हमारा जो मॉडर्न मैथ है, आज का मैथ है, वी आर लिमिटेड, मतलब वी आर नॉट एबल टू फाइंड क्यूब रूट ऑफ डेसिमल्स, वी आर नॉट एबल टू फाइंड मोर देन 4 और 5 और प्राइम नंबर। But in Vedic math, we can find cube root of any number. We can find square root in just 5 or 6 seconds. Yes, that is there. That we'll discuss in later. Famous Pythagoras. All of you know about Pythagoras theorem. 10th क्लास में बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। वो कहते हैं सब इस पे रट्टा मारते हैं, एच स्क्र इज इक्वल टू पी स्क्र प्लस बी स्क्र, हाइपोटेन्यूज स्क्र इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्र प्लस बेस स्क्र। बट यू नो पाइथागोरस से 500 साल पहले बोधियन ने वो थ्योरम दे दी थी। Can you believe that? Now, Pythagoras theorem is also known as Pythagoras-Bodhian theorem. क्योंकि अभी जो हमारा विकसित भारत का चल रहा है ना, तो धीरे धीरे जो हमारे इंडियंस ने कोई साइंस में, कोई मैथ्स में, कोई किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी फील्ड में, चाहे एस्ट्रोनॉमी में जो काम किया है, वो धीरे धीरे रिवाइव हो रहा है। तो अब देखिए, सिंपल सी बात है, पाइथागोरस को तो चेंज कर नहीं सकते नेम, तो क्या कर सकते हैं? वी कैन एडजॉइन our discovery with that. So that is popularly known. Now Pythagoras' theorem is known as Pythagoras-Bodhian. There are thousands of options, thousands of examples we have in our Indian system which we are already using, but our perception is that that is not discovered by Indian, that is by non-Indians. Now Fibonacci sequence, the most amazing sequence in which we can say golden ratio. This is there 1 1 2 3 5 8 13, जिसमें ये बोलते हैं लास्ट दो का सम नेक्स्ट होता है। फिबोनाची गोल्डन रेशियो, फिबोनाची सीक्वेंस सबसे, अगर आप इंटरनेट पे इसको सर्च करोगे ना, तो यू नो व्हाट इज, जो ब्यूटी है ना, जो ब्यूटी हम बोलते हैं दुनिया में, वर्ल्ड में, नेचर में, जहां भी ब्यूटी है, तो वो फिबोनाची सीक्वेंस में होगी। यस, तो जो फिबोनाची सीक्वेंस है, दैट इज अ गोल्डन रेशियो which appeals beautiful, which appeals aesthetic, which we say yes, wow, that is there. That is always in Fibonacci sequence, but that is also introduced by our great Indian mathematician Virhanka. ये चीज अभी रिसेंटली पिछले 3-4 सालों में पता चली है कि फिबोनाची सीक्वेंस की जो इन्वेंशन, उससे पहले विरहंका ने ये दे दिया था। You know what is if I'll say our bad luck is there due to our Muslim attacks, our literature complete, all this was completely destroyed. But you say we Indians, I hope you have also goosebumps कि यार हम इतना कुछ कर रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं, बट हमें नहीं पता। और देखो, फ्रैक्शन, डेसिमल, HCF का, LCM का कॉन्सेप्ट जो सब कर रहे हैं,